सर आएगी स्पीच आएगी सर बाकी बच्चों पर 3, 4, 5 साल के अंदर चश्मा लगता। भारत के अंदर यह आंकड़ा 25% है और हमने नए बच्चे रोकने वाला नहीं है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस की हर बात shown that more than 96% of the patients at 1 year time have 6/6 vision after this procedure. That means that the accuracy is pretty high, and if you look at vision being 6/12, that means 2 lines short, 100% patients fell into that. So the powers that we have treated are up to -10 and a cylindrical power of -5. So it can do minus powers both the sphere and the cylinder, and the incision is as small as 2 millimeters. Okay, so it's a smooth incision lenticular keratoconiosis. That's what it stands for. That means that you are making a small lenticule, like supposing you have a loaf of bread. You just slice it and pick out a slice and take it out. So what happens is that changes the curvature of the cornea. और ये कॉर्निया का जो कर्वेचर चेंज होता है, दैट इज अ परमानेंट चेंज इन द कर्वेचर, सो देयरफॉर द नंबर गोज अप. नाउ वंस अ पर्सन इज मोर देन 45 इयर्स ऑफ एज, आपका दूर और नज़दीक के नंबर का चश्मा अलग हो जाता है, पढ़ने का आपको नंबर लगता है. दिस स्टिल डज नॉट टेक केयर ऑफ दैट. In laser vision correction, you can do a mono vision where one eye you can correct for distance and one for near. But as of now, presbyopic corrections are there, but they are not that great that you can do 2 corrections in the same cornea. So as of now, we are removing the distance power of the patient, which could be of minus power, which is normally what the distance power patient requires. So this is to answer the first question. We have not had any patient who had a loss of vision in any eye. Second, we have had complete removal of lenticules. Third, it's an ultra fast laser and where the dissection required is almost negligible. Patient satisfaction rate on something called as PROUD, that is patient once after the surgery you ask them, that has been close to 99% patients have felt good, and the corrections have been 20/20 or 6/6 or better in 96% of the cases in 1 year. And now this is the studies were done during COVID. One more thing I want to tell you all is, see, like one more technology which is now improved here is called, suppose हम किसी की front cornea खराब है ना, तो हम eye transplantation करते हैं. So today we have this technology called pinhole eye surgery, and you can check it out on the Wikipedia again, pinhole pupiloplasty. So हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आँख है ना उसको एक pinhole की तरह बना देते हैं. So many of these people who go for eye transplantation need not go for eye transplantation with pinhole surgery. The bottom line again is the same message which we are trying to give you is that today Indian ophthalmology या Indian eye doctors इतने advanced हैं, they are in the forefront. नहीं तो that is the basic message which I want to show, and that's what Mr. Om Birla of Lok Sabha speaker also mentioned. देखिए, आपने recent past में कभी सुना है कि कोई भी बड़ा व्यक्ति या dignitary has gone overseas for getting eye treatment? It's very rare. So that's the thing. People from outside come to actually watch us do, and they get even training to do surgery. That is the important. And what he was talking about, the burden of blindness is actually reducing over time because there are more and more surgeries that are being done. I think the government having brought out the Ayushman Bharat scheme, that's also pretty good, where the patients are getting good quality care. Overall, I think we should be proud of what Indian ophthalmologists are doing, because they are doing at a fraction of a cost, and we get a lot of traffic from outside also to come and get their surgeries done. The biggest advantage is that a person, medical tourism जिसको कहते हैं, ये सही माने में इसमें medical tourism है. व्यक्ति tourism के लिए आता है, 2-4 दिन में अपना ऑपरेशन कराया, लेजर कराया, अगले दिन वो मतलब they can go away and do whatever they want to do. So we are getting a lot of patients, and there is a lot of activity that is happening in the eye care space. सर ये बता दीजिए कि काला मोती और सफ़ेद मोतियाबिंद में क्या फ़र्क है सर? कैसे ये जानकारी मिली है? कैसे ये अचानक होता है या एक एज के अनुसार होता है? अचानक भी हो सकता है. काला मोतिया काला है, काले का मतलब जहाँ पे ऑब्वियसली यू आर इन द डार्क,
तो काला मोतिया ऐसा, सफ़ेद मोतिये का ये होता है कि जब सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन किया जाए तो उसमें विजन वापस आ जाती है। काला मोतिया ये होता है जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर होता है वैसे आँख में एक पानी बनता है जिसको एक्वस कहते हैं। वो फ्लूइड जो है अगर उसकी ड्रेनेज रुक जाए या वो फ्लूइड ज़्यादा बन रहा हो या मिसमैच हो दोनों चीज़ों में, तो आँख की जो ऑप्टिक नर्व है, नस है, वो सूखने लग पड़ती है। तो वो आई का जो प्रेशर है दैट इज़ नॉट कमेंसुरेट विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व सूख जाती है, तो नर्व जितनी सूखती जाती है विजन लूज होती जाती है। प्रॉब्लम काले मोतिये में ये है कि ये जो विजन लूज होती है, साइड से पहले फील्ड ऑफ विजन कम होती है, सेंटर की विजन मेंटेन रहती है, इसलिए व्यक्ति को बाद में पता चलता है। तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट में ज़्यादा होता है, मायोप्स में ज़्यादा होता है, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनमें ज़्यादा होता है। ये नॉर्मली 45-50 साल की बात होता है, तो इसको काला मोतिया कहते हैं। सफ़ेद मोतिया जो होता है, जो आँख में डॉक्टर अमर ने बात करी, जो लेंस है वो धुंधला पड़ जाए तो उसको कैटरैक्ट कहते हैं। सो एनी ओपेसिटी इन दी नॉर्मल लेंस ऑफ एन आई इज कॉल्ड एज कैटरैक्ट। उसको हम सर्जरी के जरिए निकाल सकते हैं, टुकड़ा कर करके, चूरा करके, और उसकी जगह कृत्रिम लेंस लगा देते हैं, तो उसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं, और उसको हम IOL कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं। और काला मोतिया जो है वो आँख का प्रेशर बढ़ने से होता है। उसमें कई प्रकार की दवाइयाँ हैं, उसमें सर्जरी होती है, और आजकल जो लेटेस्ट है वो आई स्टेंट्स हैं जो कि हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे हैं, जिसमें कि एक ट्यूब डल जाती है जिससे कि पानी आँख के जो अंदर बन रहा होता है वो बाहर ड्रेन हो सके। रिफ्रैक्टिव सोसाइटी ऑफ इंडिया की एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि लगभग 1000 डेलीगेट्स आए हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। और इसमें हम जो है कैटरैक्ट सर्जरी यानी कि सफ़ेद मोतिया की सर्जरी की जो विधि है उसमें जो एडवांसमेंट्स हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, और दूसरा जो लेज़र विजन करेक्शन होता है, जो चश्मा उतारने की विधि है, उसके अंदर हम जो भी एडवांसमेंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, और इसमें आदान प्रदान होता है, और पेशेंट एजुकेशन के बारे में, और कैसे नई नई टेक्निक्स और कॉम्प्लिकेशंस अगर हों या बेटर रिजल्ट्स लेने के लिए क्या क्या टेक्निक्स अडॉप्ट की जा सकती हैं। आजकल आँखों की जो बीमारियाँ लोगों में दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं उसको लेकर के आँखों की बीमारियाँ आजकल जो है मायोपिया के बहुत इंसिडेंस बढ़ रहा है, और ये कोविड के बाद ज़्यादा देखा गया है, जिसमें कि आप ये देखिए कि आज से 25 साल पहले मायोपिया का इंसिडेंस बच्चों में जो था वो 5-6% होता था। आज की तारीख में इंडिया में वो 22-25% बढ़ के चला गया है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं जाते हैं, सनलाइट वगैरह में नहीं होते हैं, और साथ में हर वक्त अपने टीवी मोबाइल वगैरह पे लगे रहते हैं। उससे आँख की मांसपेशियों पे असर पड़ता है, आँख की आईबॉल की साइज़ बढ़ता है, और मायोपिया यानी कि माइनस का नंबर जो है वो बच्चों को लग जाता है। मैं प्रोफेसर अमर अग्रवाल हूँ और सेक्रेटरी जनरल हूँ इंडियन इंट्राऑक्यूलर इम्प्लांट सोसाइटी की, एंड चेयरमैन ऑफ अग्रवाल ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स। अभी हमने यहाँ पर एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा है विद डॉक्टर महिपाल सचदेव, जिसमें हम मोतियाबिंद और लेज़र तरकीबें के बारे में डिस्कशन करें। मेन एम ये है कि हम इस नई तरकीबों को सबको सिखा सकते हैं, ताकि बेसिकली हमारे कंट्री में 1.5 करोड़ ब्लाइंड हैं, जिसमें 55% मोतियाबिंद की वजह से है, और इनका इलाज हो सकता है। हमारे ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सर ने इनॉग्रेट किया है इसी कॉन्फ्रेंस को, और लेज़र विजन से किसी का नंबर हो -10 का भी हो उसको ज़ीरो कर सकते हैं थ्रू दिस लेज़र टेक्नोलॉजी।